Hello everyone, I hope you're doing absolutely well. My name is Gautam and welcome back to the channel. Welcome है आपका to a new video, to a new series I should be saying. So this series we are calling it a 100 mega MCQ series wherein we shortlist 100 MCQs for each topic area, be it portfolio management, be it corporate issuers, equity, fixed income, derivatives, for all topic areas ताकि आपका one stop पूरा revision हो जाए of the entire subject. You're all prepped up है ना, and you approach the exam with a lot of confidence. The main reason is to instill this confidence क्योंकि concepts सब पढ़ लेते हैं but question solving के time पे there is a lot of anxiousness, बहुत घबराहट हो जाती है कि सर solve नहीं हो रहा question, ये आता नहीं है, जबकि we know all the concepts but we're just not able to take that leap. So for that very reason I'm here, we'll share all the MCQs with you है ना. So this is a new series that we are coming up with where we share 100 MCQs. It will be in a phased manner, in form of a series. This is part 1 of 4. And if you like it, do let me know. Comment down, just add a like button. And do let me know. I'll come out with more such videos. We'll come out with more capsule revisions that help you ace the exam. So before moving ahead, this will be very helpful for those one who are giving the November exams, for second who are giving the Feb attempt. ठीक है, so this is very important. These questions are very exam representative and will help you to recap the entire chapter in a mere 20-25 minute thing. So 5 chapters of corporate issues you will be able to revise if you follow alongside, and the best would be if you solve side by side. ठीक है, but at the end अगर कोई आपको gap feel हो या कुछ भी हो, please comment down. I am available for any doubt resolution. If you need, you want to connect with me, you can connect on Instagram, LinkedIn, you can comment down, you can join the Telegram group, let me know है ना, and let us ace the exam with a lot of conceptual clarity, one, and second, a lot of question solving. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. सो द फर्स्ट चैप्टर इन कॉर्पोरेट इशूअर्स इज ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स, कॉर्पोरेट इशूअर फीचर्स एंड ओनरशिप. ठीक है सर, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग अ लिमिटेड कंपनी. तो लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट फीचर. ओनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं. इट हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, येस, ये हो सकता है. It cannot raise external capital, no. It can always raise external capital. It can raise external capital in the primary market or in the secondary market. ठीक है सर, फिर आता है क्वेश्चन 2, विच इज़ अ की एडवांटेज ऑफ पब्लिक ओनरशिप व्हेन कंपेयर टू प्राइवेट ओनरशिप. तो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज और प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली. डू पब्लिकली देर आस्किंग एन एडवांटेज. So public companies give lower disclosure requirements, no. They have greater access to capital markets, yes, they have a greater access to capital markets. Easier management control, false है, there will be difficult management control. ठीक है, therefore the answer is B. फिर आता है which organizational form is subject to double taxation. Sole proprietorship तो हमारा ही बिजनेस है, तो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ डबल टैक्सेशन. जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो भी पूरा प्रॉफिट होता है, इट इज़ स्प्लिट अमंगस्ट पार्टनर्स, वो अपना अपना प्रॉफिट ले जाते हैं, वो टैक्स हो जाता है. हाउएवर इन अ पब्लिक कोऑपरेशन, इन अ पब्लिक कंपनी, पहले कंपनी टैक्स पे करती है और फिर जब वो एक इन्वेस्टर के पास जाता है, शेयर होल्डर के पास जाता है, ही ऑल्सो पेज टैक्स. तो यहाँ पे क्या आंसर होएगा, ऑप्शन सी. तो डबल टैक्सेशन इज फेल्ट in case of a public corporation. ठीक है सर. An IPO is described as, what do we mean by an IPO? An IPO is an initial public offering. Initial public offering क्या होता है इसमें, wherein companies come, they advertise and they are able to raise money for growth, for expansion, for their operations. ठीक है. What do we mean by IPO? It is sale of new securities to the public for the first time, correct. A sale of securities by one investor to another, no. Conversion of private debt into equity, no. So what is it? This is considered, sorry, this is option A is the right answer. Where does option A happen? This happens in the primary market, जहाँ पे न्यू ऑफरिंग्स होती है. Sale of securities by one investor to the other happens in the secondary market. तो जो हमने सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट्स या जो भी सिक्योरिटीज़ वी हैव इशूड इन द प्राइमरी मार्केट, दे गो इन द सेकेंडरी मार्केट फॉर सेल, फॉर ट्रेड. ठीक है सर. विच टाइप ऑफ ओनर इज मोस्ट लाइकली टू प्रायोरिटाइज नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स.
एवरीवन वुड वांट टू प्रायोरिटाइज फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट, सबको पैसा कमाना है, कौन कोई ऐसा है जिसको पैसा नहीं कमाना है? आई वुड वांट टू मीट स्पेशली सच एज सोशल और पॉलिटिकल गोल्स। अब सोशल और पॉलिटिकल गोल्स के नाम से हमारे दिमाग में आ जाता है इट वुड ऑलवेज बी द गवर्नमेंट विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज नॉन फाइनेंशियल गोल्स। क्यों? क्योंकि development would be the primary objective, growth would be the primary objective, employment, sustainability of equitable opportunities would be the answer इनके लिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बैंक लाइक HDFC बैंक, ICICI, कोटक सिक्योरिटीज, they are in the business of making wealth. Why would they want to prioritize non-financial objectives? Retail investors, हम, मैं और आप, would you ever want to prioritize non-financial objectives? It could be once a while, but not always you would want to prioritize. ठीक है, तो that is why government is the answer. फिर आता है मॉड्यूल 2, that is investors and other stakeholders. इसमें आता है which statement about equity versus debt holders is correct? Debt holders have residual claim on assets? No, this talks about equity. Equity holders have limited liability? Correct. Equity holders have limited liability, ये तो right है. We are wanting to know what is the correct statement. Why is it that equity have limited liability? Because their liability is capped to the nominal value of the share they hold. अगर 10 रुपये का शेयर है तो दे वुड बी सपोज, तो 10 रुपीज़ से ज़्यादा की लाइबिलिटी नहीं होएगी. टू गेट एक्सेस टू दैट शेयर एटलीस्ट या एट मैक्स उनको 10 रुपीज़ पे करना पड़ेगा. बियॉन्ड 10 रुपीज़ दे आर नॉट लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे. ठीक है सर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which stakeholder conflict is most likely to arise? Stakeholder conflict, management versus auditors. Would management and auditors ever come into a conflict? They can, but it is not always most likely. Yeah, here they are asking the most likely conflict. The second is shareholders versus creditors. Shareholders versus creditors is a very very prime example, because shareholders की जो liability है, there it is capped by the nominal value of the shares. बट हाउएवर जो क्रेडिटर्स है, कल को अगर कंपनी ने उल्टा पुल्टा रिस्क ले लिया, बैंकरप्ट हो गई, तो इनका तो पूरा पैसा एट स्टेक ही आ जाएगा. शेयर होल्डर्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्रेडिटर्स का तो सारा पैसा ही ब्लॉक्ड है. देवर द लेंडर्स, दे गेव मनी थिंकिंग दे विल गेट अ गुड रिटर्न, दे विल गेट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट इन एडिक्वेटली स्पेस्ड आउट टाइम इंटरवल्स, बट वो मिला ही नहीं, कंपनी डूब गई, बैंकरप्ट हो गई. इसलिए दिस इज़ अ वेरी बिग एंड अ प्रोमिनेंट agency cost or an agency conflict that appears between shareholders and creditors. फिर आता है which stakeholder group is primarily concerned with timely payment of interest and principal. हमने अभी जस्ट पढ़ा lenders और loan providers. Who are loan providers? Debt holders, money lenders. ठीक है सर. फिर आता है which is an example of a social ESG factor. ESG, we understood what is ESG. ESG is environmental related factors, S is social related factors, G is governance of the entity related factors. So are your practices environmentally good? Are your practices socially good? Are your practices in case of governance good? Agar it is good, then it is a thumbs up. People will tend to invest more in your entity and it will have a good positive image, public image. And अगर आपके पास public image अच्छी है, everything falls in your favor. So here they're asking, is board independence about social factor? No. Climate? No. Board talks about governance. Climate talks about E. And employee health and safety talks about social. तो C is the answer. ठीक है सर. फिर आता है stranded assets. Stranded assets in the energy sector are best classified as. What are stranded assets? Stranded assets are assets जो हमने यूज़ कर रहे होते हैं या we are using them and a government regulation comes कि अब वो यूज़ नहीं करना, या there has been an upgradation of technology, तो it turns out to be irrelevant now. तो हम वो यूज़ ही नहीं कर सकते हैं. तो अब अगर हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं तो नाउ इट इज़ ऑफ नो यूज़ एंड इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन रिस्क. फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल. पहले हमारे पास कोल के बहुत माइंस थे, कोल माइंस बहुत थे, बड़े बड़े हमने कोल माइन करे थे. ठीक है,
बट ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, अब हम ESG इतना पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन आ गया कि अब आप कोल नहीं यूज़ कर सकते। तो अब वो जो आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था, वो सारा अपना जो होता है, व्हाट डू वी डिग आउट, खुदाई हम इतनी ज़्यादा करते हैं टू एक्सट्रैक्ट प्योर कोल, तो वो सब किया हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बिल्टअप किया, वो हम वी गॉट ऑल द ट्रक्स एंड स्टफ, बट अब गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया कि हम यूज़ नहीं कर सकते, जो भी एसेट्स थे अब ये स्ट्रैंडेड हो गए। तो अब ये ट्रांजिशन, अब हम किस में ट्रांजिशन करेंगे, कैन वी यूज़ इट, शैल वी यूज़ इट समवेयर एल्स, तो देयर इज़ अ बिग रिस्क इसका। ठीक है सर। फिर आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मोस्ट लाइकली अराइजेज with firms with dispersed ownership, firms with controlling shareholder और state owned enterprises। B, अगर कोई एक controlling shareholder हो तभी तो there will be conflicts, तभी तो there will be disagreement। अगर सब बहुत ही dispersed है, सब के पास बहुत कम कम शेयर है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बट यही कि एक शेयर होल्डर के पास बहुत बड़ा स्टेक है, ही विल बी स्टबन, ही विल बी अ वेरी हार्ड कोर स्टबन पर्सन कि मैं जो चाहता हूँ हम वही करो। तो फर्म्स विद द कंट्रोलिंग शेयर होल्डर विल ऑलवेज फेस majority minority stakeholder issues। Shareholders influencing decisions through proxy voting is an example of shareholder mechanism। ठीक है सर। Why shareholder mechanism? Board mechanism talks about board of directors and management mechanism talks about how management is able to take in positions or speak out its voice। यहाँ पे तो हम shareholders की voting की बात कर रहे हैं ना, तो वो shareholder mechanism में आएगा। ठीक है सर। Greater transparency in financial reporting primarily reduces, what is financial reporting? Financial reporting is जो हमारे financial statements होते हैं, उसमें अगर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप अच्छे फॉलो, आप सही फॉलो कर रहे हो, जो जो आपको बताना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, आप सब डिस्क्लोज कर रहे हो विद द पब्लिक, विद योर शेयर होल्डर्स, तो इट रिड्यूसेस लीगल रिस्क। येस, इट रिड्यूसेस लीगल रिस्क। डज इट रिड्यूस एजेंसी कॉस्ट? इट डज, आई डोंट थिंक सो। रेगुलेटरी बैरियर्स, डज इट रिड्यूस रेगुलेटरी बैरियर्स? आई डोंट थिंक so। Greater transparency in financial reporting, does it reduce legal risk? It can reduce legal risk। Does it reduce agency cost? Agency cost, I feel this would be asking debt holders versus shareholders वाला question, debt versus equity वाला question, इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन पोज किया। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड। कंफ्यूज ना हो जाए या जंबल अपना हो जाए इन कॉन्सेप्ट, इसका हम एक बारी आंसर भी देख लेते हैं। व्हाट डज द आंसर से? Greater transparency leads to reduced agency cost. Conflicts between the managers and shareholders, lowering agency cost. Option A is less precise as legal risk is indirectly reduced but not the primary purpose. Option C is incorrect because transparency does not remove regulatory barriers। अच्छा, I was thinking they're talking in terms of debt and equity, but they're talking in terms of management versus equity shareholders। ये भी हो सकता है। अगर हम डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी रिड्यूसिंग एजेंसी कॉस्ट, बट द एग्जांपल दैट दे हैव टेकन इज मैनेजमेंट वर्सेस इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है सर। फिर आता है पुअर गवर्नेंस इज लीस्ट लाइकली टू कॉज। वी नो ESG अगर आप फॉलो नहीं करते हो, एवरीथिंग बैड विल हैपन विद यू, क्योंकि आपकी अब पब्लिक में इमेज अच्छी नहीं है। एट द सेम टाइम, एक मिनट, एट द सेम टाइम अगर आप ESG फॉलो कर रहे हो तो एवरीथिंग गुड विल हैपन टू यू, क्योंकि आपकी एक पब्लिक परसेप्शन बहुत अच्छी बनी हुई है। तो अगर पुअर गवर्नेंस है तो विल इट लीड, इज लीस्ट लाइकली टू कॉज, पुअर गवर्नेंस will lead to lower cost of capital, operational inefficiencies, legal and reputational risk, which will not happen, which will not happen, ये will not happen ना। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज तो होंगी ही होंगी, लीगल एंड रेपुटेशनल रिस्क होंगी, क्योंकि आपका पब्लिक परसेप्शन ही गलत बैठ गया है अब। तो इट विल नॉट लीड टू अ लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंस्टेड इट विल लीड टू एन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है सर। फिर आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड प्राइमरीली हेल्प। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, व्हाट डू दे हेल्प इन डूइंग? दे हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर राइट्स। यस। डू दे गारंटी डिविडेंड पे आउट्स? नहीं। डू दे इंश्योर हायर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स? नहीं। तो ए, दे स्ट्रेंथन माइनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट्स। ठीक है सर। अब आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ लर्निंग मॉड्यूल 4, वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी। कैश कन्वर्जन साइकिल
कैश कन्वर्जन साइकिल इज व्हेन द इनपुट्स, द टाइम जब इनपुट्स बिकम आउटपुट्स, बिकम सेल्स एंड वी आर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू कैश। यहाँ पे हमने कैश लिया होता है टू बाय इनपुट्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है दैट इज द कैश कन्वर्जन साइकिल। तो टाइम फ्रॉम सेल्स टू कलेक्शन ऑफ कैश, नो, टाइम बिटवीन कैश आउटफ्लोज फॉर इनपुट्स एंड इनफ्लोज फ्रॉम सेल्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कैश, कैश कब बन जाता है, इतनी देर में, तो दिस इज द कैश कन्वर्जन साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लिक्विडिटी। अगर आपके पास, व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इज एक्सेस टू कैश, लिक्विड कैश। क्रेडिट लाइन, आपको कॉल करना पड़ेगा बैंक को कि आप क्रेडिट लाइन हमें प्लीज़ इशू कर दो। एसेट आपको सेल करना है, दिस इज नॉट प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास कैश रिजर्व हो, पिगी बैंक्स हो आपके पास थोड़े रिजर्व्स हो, तो यू विल ऑलवेज हैव दिस प्राइमरी सोर्स ऑफ लिक्विडिटी। What do we mean by a drag on liquidity? दो terms if you remember, pull and drag. Drag is what reduces liquidity and pull is which increases liquidity. Here they're asking what reduces liquidity. Delayed payments from customers, this reduces, yes, this reduces. Early payment to suppliers, jabki this will, early payment to suppliers, nahi, this cannot happen. Access to committed credit lines, this will not decrease, this will increase liquidity. So the answer is A, delayed payments from customers. ठीक है सर। Which ratio best measures short term liquidity? Short term liquidity is current ratio, which is current assets by current liabilities, which is current ratio. ठीक है। Which company is most likely to face liquidity risk? What is liquidity risk? कि हमें कैश चाहिए होगा, बट जिस टाइम कैश चाहिए होगा उस टाइम कैश अवेलेबल ही नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो दैट इज द रिस्क। वन विच स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दे वी आर वांटिंग टू नो मोस्ट लाइकली। इसको तो कभी फेस करने की जरूरत होएगी नहीं। वन रिलाइंग हेविली ऑन शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स विद वीक कैश फ्लोज, वन विद लो लेवरेज एंड हाई रिटेन। अगर आपके पास रिटेन अर्निंग्स पहले ही बहुत ज़्यादा है तो यू विल नेवर फेस लिक्विडिटी इशूज। बी विल फेस, क्योंकि यू आर हेविली रिलाइंग ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स और आपकी जो कैश फ्लोज है वो भी अच्छे नहीं है। ठीक है सर, अब आ जाते हैं टुवर्ड द एंड ऑफ द थिंग, दैट इज मॉड्यूल 5, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एलोकेशन, विच इज़ इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। व्हेन वी आर लुकिंग एट प्रोजेक्ट्स की इन टोटलिटी हमारा कॉस्ट कितना लगेगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो हमारा गया ही गया, और कितने कॉस्ट्स लगते हैं हमारे। संक कॉस्ट जाता है, डू वी टेक इन टू कंसिडरेशन? नहीं, संक कॉस्ट तो वो कॉस्ट है जो लग गया, वो तो गए हो, अब नहीं हम रिकवर कर सकते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी टेक इन टू कंसिडरेशन कि अगर ये पैसा यहाँ पे नहीं लगाते तो कहीं और लगाते, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट वोंट बी द आंसर। फाइनेंसिंग कॉस्ट बेसिकली इज लाइक द डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट तो हम वैसे भी यूज़ करते हैं ना, तो फाइनेंस कॉस्ट नहीं होता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट वी टेक इन टू अकाउंट। द बेस्ट डिसीजन रूल फॉर कैपिटल बजटिंग इज NPV। इफ NPV इज पॉजिटिव एक्सेप्ट, इफ NPV इज नेगेटिव उसको रिजेक्ट कर दो। इफ IRR इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रिटर्न एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। सिंपल, ये तो पता ही लग गया हमें। फिर आ जाता है रियल ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग प्रोवाइड। व्हाट आर रियल ऑप्शंस? रियल ऑप्शंस इज जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं व्हेन यू आर अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट, कि नहीं अभी नहीं, बाद में ले लेंगे, थोड़ी देर बाद ले लेंगे, अबैंडन कर देंगे, नहीं लेना ही नहीं है, ये प्रोजेक्ट अंडरटेक ही नहीं करना क्योंकि हमें पता चला कि ये फ्रूटफुल होगा ही नहीं इन सो मच चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इन सो मच चेंजिंग टाइम्स। तो व्हेन यू हैव दिस ऑप्शन टू आइदर अंडरटेक और नॉट टू अंडरटेक और टू स्टॉल अ प्रोजेक्ट, टू वेट, मतलब उसको हम रुकवा सकते हैं प्रोजेक्ट को, तो व्हाट विल दैट हेल्प इन? दैट विल गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी कि आप प्रोजेक्ट अंडरटेक करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो स्टॉल कर दो, बाद में कर लेना। तो दिस विल ऑलवेज प्रोवाइड यू फ्लेक्सिबिलिटी। गारंटीड, एक तो गारंटीड जब भी आ जाता है ना, दिस इज अ वेरी हार्श लैंग्वेज, यू ऑलवेज कीप इन माइंड गारंटीड व्हाट? NPV is itself based on interest rate. Interest rate fluctuates, so we cannot be very sure about interest rate. ठीक है, and lower finance cost, we cannot take into account lower finance cost, it will depend कि कितना interest rate होएगा। ठीक है, and last question, return on invested capital is best compared with। जो invested capital हो सकता है, वो invested capital किससे हो सकता है? या तो debt हो सकता है या equity हो सकता है, दो टाइप का कैपिटल हो सकता है। कॉस्ट ऑफ डेट हो सकता है, WACC होगा, या बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। सबसे बेस्ट होगा WACC बिकॉज दिस टेक्स इनटू अकाउंट बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी। ए नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इट ओनली टॉक्स अबाउट डेट, एंड बी इट ओनली टॉक्स अबाउट इक्विटी, इक्विटी का भी सिर्फ बुक वैल्यू।
ठीक है, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन बी। तो नीचे सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं फॉर ऑल, यू कैन रेफर देम इन केस एनी आंसर इज़ रॉन्ग। आई एम ऑलरेडी सॉरी, आई डेंट इंटेंड टू बी रॉन्ग, बट ऐसा कुछ होगा, अगर कोई मिसमैच होता है या कोई ओवरलैप होता है, डू लेट मी नो, वी कैन डिस्कस, है ना। यू कैन कमेंट डाउन अगर आपका कोई भी इशू है, या इफ़ यू नीड एनी रिविजन वीडियो, या यू वांट मोर सच capsule revisions your way, ठीक है। We are building a lot, we are all set to launch our course in October, ठीक है। I hope this adds value. In case you have any issues, please reach out. You can drop in a comment, reach out to me on LinkedIn, Instagram, Facebook, although Facebook is like very old now, but nonetheless, you can reach me out on any of my platforms, they're listed down, okay। Let us ace the exam. The most important thing is right now we focus a lot on question solving. Concepts aate hain, we have read and we have reread. The most important thing is to sit down for hardcore question solving, okay। I hope this added value. If it added value, please like the video, share it ahead with your friends. It will be very motivating and encouraging getting a comment from you. Do let me know any feedback if you have, please share it. I'll try to work on it, and we'll be better in the next video. Thank you, bye bye, take care.